Hello everyone, today I am going to tell you about investment, meaning, objective and process. I hope you like this video. I will make more video on the same subject. Please share, like and subscribe my channel so that you get all the notification on time. Let's start with the topic. Today I am going to tell you what is investment. That is the most important thing according to today's scenario. That is need of the hour also. What's the meaning and as well as the objective and process of the investment. Investment refers to buying of a financial product. Financial product here mean when we invest the money, any of the instrument that is known as the financial product. Like हम कहते हैं कि FD में हमने पैसे लगा दिए, NSC में लगा दिए, LIC हमने वहाँ पे परचेज कर ली. तो जो भी हम फाइनेंशियल प्रोडक्ट ले रहे हैं और एनी वैल्यूड आइटम विद एन एंटिसिपेशन, यानी कि हम प्रिडिक्ट करके चलते हैं, एंटिसिपेशन करके चलते हैं, फोर्सिंग करके चलते हैं, दैट पॉजिटिव रिटर्न विल बी रिसीव इन द फ्यूचर. यानी कि हमें वहाँ पे पॉजिटिव रिटर्न वहाँ पे मिले. दिस इज़ द मेन मोटिव बिहाइंड द investment, to gain a return from the market or positive return from the market. According to economics, investment is the utilization of resources. This is the most important thing कि how much fund you have and how you invest that money. It is a proper utilization of resources in order to increase income or production output in the future. तो main हमारा यहाँ पे क्या हुआ objective to increase the income. और investment कौन करेगा? Investor are going to do investment in the market. Now the next one is what is investing. हम क्या इन्वेस्ट कर सकते हैं? परचेज ऑफ एसेट विद द गोल ऑफ इंक्रीजिंग फ्यूचर इनकम. या तो हम एसेट्स वहाँ पे परचेज करें. एसेट्स कोई भी होंगी, रियल एसेट्स होती हैं, फाइनेंशियल एसेट्स होती हैं. एंड सेकंड वन, फर्स्ट हो गया कि हमें अपनी फ्यूचर इनकम वहाँ पे लेके चलना है. दैट्स वाई वी इन्वेस्ट इन द मार्केट. एंड सेकंड वन इज़ वेल्थ एप्रिशिएशन इज़ देयर, यानी कि हमें वेल्थ को इंक्रीज़ करना है वहाँ पे. फॉर एग्जांपल, इफ़ यू परचेज अ शेयर ऑफ वन कंपनी एट द रेट ऑफ 100 और वो आफ्टर 1 year द रेट गोज़ टू 110, देन देयर इज़ इंक्रीज इन द वेल्थ ऑफ द share as well as the there is a income to the investors. Investment is defined as a sacrifice made now, यानी कि आज हमने sacrifice किया now to obtain a return later, यानी कि हमने future के return के लिए आज जो भी पैसे हैं उसे sacrifice कर दिया. We invest the money in the market on a particular investment avenue. So many avenues are there in the market. जैसे हम बात करते हैं कि बैंक is there, government securities are there, post office securities are there, insurance securities are there, share market is there, real estate is there, commodity market is there. These are the investment avenues in the market. आज हम अपने मनी को वहाँ पे sacrifice करें, we invest the money in that avenue and we get a return in the near future. It is current consumption that is sacrifice. Two form of investment can be defined. Real investment and financial investments are there. Real investment जब हम बात करते हैं लैंड की, मशीनरी की. Financial when we purchase paper contract. Paper contract here mean we purchase FD या we purchase any security document from a particular institution. Now we discuss about the objective of investment. This is the most important thing. Objective की जब भी हम बात करते हैं कि हमारा इन्वेस्टमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा, मेनली हमारे पास दो ही ऑब्जेक्टिव रहते हैं. वन इज़ मैक्सिमाइज द रिटर्न एंड सेकंड वन इज़ मिनिमाइज द रिस्क. These two are the main objective for any business. यानी कि the investor want to increase the return as well as reduce the risk in the market. And sub objectives are of investment, maintaining liquidity कि how quickly we convert the asset into cash, and second one is hedging against the inflation, because inflation is increasing day by day, and how we reduce the risk that is caused by the inflation. That is also one of the objective of the investment. Next one is increasing safety. Now we start with the first objective, maximization of the return. The rate of return could be defined as a total income the investor received during the holding period. यानी कि for example, I want to invest for the 5 years and how much I receive after 5 years, that is known as the return. Stated as a percentage price at the beginning of the holding period, यानी कि जितना मैंने स्टार्टिंग में, फॉर एग्जांपल आई इन्वेस्ट 50 रुपीज़ इन द मार्केट और आफ्टर 1 year आई एम गेटिंग 100 रुपीज़ फ्रॉम द मार्केट, सो दैट मैं कहूँगी कि कितने परसेंट मुझे वहाँ पे इंक्रीज़ हो गया. नेक्स्ट वन इज, दिस इज़ अ फार्मूला ऑफ द रिटर्न कि हाउ वी कैलकुलेट द रिटर्न. कैपिटल एप्रिशिएशन plus yield. Yield means we get dividend as well as the interest from the company. That is also income to the investor. This is a formula. Return and period value. End of the period how much amount you get minus beginning period value. Starting में आपने कितने पैसे लगाए थे plus dividend or interest you get from the company divided by the beginning period value. For example, in 2011 50 रुपीज़ में मैंने कोई भी शेयर परचेज़ किया और 2012 में उसकी वैल्यू हो गई 60 रुपीज़, तो और डिविडेंड मुझे मिला 5 रुपीज़. तो हाउ मच रिटर्न इज़ देयर?
यानी कि हम यहाँ पे कैसे कैलकुलेट करेंगे, 60 माइनस 50 10 प्लस 5 रुपीज़ एज अ डिविडेंड, यानी कि 15 रुपीज़ आर देयर डिवाइड बाय 50, तो मुझे कितना रिटर्न आया मार्केट से, 30% रिटर्न इज देयर. Now the second is minimize the risk. This is the main objective of investment. Whenever we go for the investment, there is one thing in the mind of the investor to increase the return on the basis of less risk in the market. There are various investment avenues are there. On the basis of that, like we invest in the market, we have to diversify our risk with the help of various security. When we talk about government securities are there, ठीक है, ये हमारी लो रिस्क कैटेगरी के अंदर आ जाती हैं. जब हम डिवेंचर्स की बात करते हैं, प्रेफरेंस शेयर की बात करते हैं, एज़ कंपेरिजन टू इक्विटी शेयर, ये हमारे मीडियम में आ जाएंगे. इक्विटी शेयर हमारा हाई रिस्क कैटेगरी के अंदर वहाँ पे आ जाएगा. तो मेन जो इन्वेस्टर का टारगेट होता है, इन्वेस्टमेंट का ऑब्जेक्टिव होता है टू मिनिमाइज द रिस्क ऑन द बेसिस ऑफ मैक्सिमाइज रिटर्न इन द मार्केट. और रिस्क क्या हो गया हमारा, जो अनसर्टेनिटी है रिलेटेड टू फ्यूचर. रिस्क मीन्स एक्चुअल जो रिटर्न है बिकेम लेस देन द एक्सपेक्टेड रिटर्न. जैसे आई एम गोइंग टू एक्सपेक्ट कि आई एम गेटिंग 100 रुपीज़ ऑन माई इन्वेस्टमेंट ऑफ 50 रुपीज़ इन वन शेयर, लेकिन जो मुझे एक्चुअल में मिला दैट इज़ 60 रुपीज़. तो वो क्या हो गया, जो एक्सपेक्टेड और एक्चुअल रिटर्न में डिफरेंस आया, दैट इज़ नोन एज द रिस्क. एंड द इन्वेस्टर वांट टू मिनिमाइज द रिस्क एवरी टाइम इन द मार्केट. Next one is to maintain the liquidity in the market. Liquidity means how easily, how quickly we convert the assets into the cash. ठीक है, तो दिस इज़ द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द इन्वेस्टमेंट. वेन एवर वी इन्वेस्ट इन द मार्केट, वी हैव टू इंश्योर कि वेदर हाउ मच मनी वी आर गेटिंग एंड हाउ क्विकली वी कन्वर्ट आर एसेट इन टू द कैश. दैट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ द इन्वेस्टमेंट. नेक्स्ट वन इज इन्फ्लेशन. Inflation also very important thing in the market, because the prices of the commodities change every time, and that is known as the inflation, and that influence the purchasing power of the money. ठीक है, तो अगर आई टेक वन एग्जाम्पल हियर, इफ़ आई एम गेटिंग 10% रिटर्न आफ्टर 1 year and inflation is also get rises in the market by 10%, then there is a zero return in my hand. So we have to go for the hedging against the inflation. Hedging means क्या होता है, to reduce the risk regarding the inflation in the market, and the person who perform this activity, that is known as the hedger. Now the next one is increasing safety. This is the most important thing whenever we go for the investment. Our mind, like we want to be safe in the market, so that we have to rank the investment, we have to diversify our portfolio, and we have to rank the securities like this. Like bank deposit are much secure as comparison to the other securities in the market. Bank deposits are there, government bonds are there, convertible, non-convertible debentures are there, equity is there. Like these are the avenues in the market, and you have to ensure about your safety. You have to make a sequence of these investment ki how much amount you have to invest in a particular investment avenue on the basis of your risk return parameters or portfolio. Now this is the most important thing in investment. What is the process of that, ki how we invest in the market. We have to set our mind according to the market scenario. We have to decide about the objective. We have to get knowledge from the market. We have to analyze the company, market, as well as the industry where we want to invest. We have to valuation the security, as well as we construct the portfolio there, and after that, time to time, we have to make a revision. Now let's start with this process. First of all, when we discuss about the process, we have to set investment policy here. We have to make our mind how much amount we are going to invest in the market, what are the objective in our hand, whether short term and long term investment objectives are there. Which investment assets are most beneficially for me, most fruitful for me, as well as the allocation of the funds in a various investment avenues. This is the most important decision that must be taken by the investor. Like we have to decide about the कितना हमें फंड वहाँ पे इन्वेस्ट करना है, मेरे ऑब्जेक्टिव क्या हैं, वेदर शॉर्ट टर्म है, वेदर लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स है माइंड के अंदर, 5 years के लिए लगाना है, 10 years के लिए मुझे वहाँ पे फ़ंड को इन्वेस्ट करना है मार्केट के अंदर. मुझे इन्वेस्टमेंट एसेट्स जो मेरी इन्वेस्टमेंट एसेट्स है मुझे वो आइडेंटिफाई करनी है कि वेयर आई गो टू इन्वेस्ट इन द मार्केट, वेयर वी वांट टू इन्वेस्ट इन द मार्केट. एंड नेक्स्ट इज़ एलोकेशन मेरा वहाँ पे क्या रहेगा कि 20% किस में करना है, 10% किस में करना है. आई एम हैविंग 100%, जैसे मैं कहती हूँ कि आई एम हैविंग 1 lakh रुपीज़ इन माई हैंड, एंड हाउ वट इज़ द एलोकेशन ऑफ फंड, हाउ आई इन्वेस्ट दैट 1 lakh रुपीज़ इन वेरियस इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज़.
नेक्स्ट वन इज़, अब हमने डिसाइड कर लिया कि मेरा गोल ये है। सेकंड इज़ सिक्योरिटी एनालिसिस। अब जिस सिक्योरिटी के अंदर मुझे इन्वेस्ट करना है जैसे, तो उसके बाद मैं एनालिसिस करना स्टार्ट करूँगी। मैं मार्केट का एनालिसिस करूँगी कि व्हाट टाइप ऑफ मार्केट इज़ देयर, वेदर दैट इज़ अ बियरिश मार्केट और वेदर दैट इज़ अ बुलिश मार्केट। सेकंड मैं लेके चलूँगी व्हाट काइंड ऑफ कंपनी इज़ देयर, जिस कंपनी में मुझे इन्वेस्ट करना है, और कौन सी इंडस्ट्री का पार्ट है वो कंपनी। ठीक है, तो एवरीथिंग मस्ट बी एनालाइज बिफोर गोइंग फॉर द इन्वेस्टमेंट इन द मार्केट। नेक्स्ट है वैल्यूएशन ऑफ द सिक्योरिटी। दिस इज़ अ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। वी हैव टू वैल्यूएट द सिक्योरिटी, वी हैव टू वैल्यूएट द फ्यूचर बेनिफिट फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट रिगार्डिंग दैट सिक्योरिटी। हम ये लेके चलेंगे कि फ्यूचर में उसका कितना हमें बेनिफिट मिलेगा, आज की उसकी कितनी वैल्यू है और आने वाले टाइम में उसकी कितनी वैल्यू है, हाउ मच बेनिफिट आई एम गेटिंग। तो वी हैव टू वैल्यूएशन ऑफ द सिक्योरिटी। नेक्स्ट वन इज़ पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन। अब ये सब हमने कर लिया, उसके बाद हम एक पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्ट करेंगे। वी हैव टू डिसाइड अबाउट द एलोकेशन ऑफ अ फंड ऑफ डिफरेंट एसेट्स। और सबसे पहले हम क्या करेंगे, डिसाइडिंग द डाइवर्सिफिकेशन लेवल। डाइवर्सिफिकेशन होता है एक्सपेंडेड, लाइक हम सारे की जितना भी हमारे पास मनी है, वी डोंट इन्वेस्ट इन अ पर्टिकुलर सिक्योरिटी, वी हैव टू डाइवर्सिफाई आवर इन्वेस्टमेंट इन द मार्केट। सेकेंड इज़ इन्वेस्टमेंट का टाइमिंग। दैट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन द मार्केट कि व्हेन द टाइमिंग इज़ करेक्ट फॉर योर इन्वेस्टमेंट। हम कहेंगे बेयरिश इज़ देयर, इफ़ देर इज़ अ बेयरिश मार्केट दैट इज़ द टाइम ऑफ परचेज फ्रॉम द मार्केट। अगर हम कहते हैं बुलिश है, दैट इज़ द टाइम टू सेल इन द मार्केट। और कई बार क्या होता है कि लॉट ऑफ फ्लक्चुएशंस इन द मार्केट, देन वी हैव टू मेक द एवरेज इन द मार्केट। सिलेक्शन ऑफ इन्वेस्टमेंट टाइम। अब हमने कह दिया कि कंसीडर करके रख लिया हमने, उसके बाद हम उसको सिलेक्ट कर लेंगे, टाइम फिक्स कर लेंगे कि दिस इज़ अ बेटर टाइम टू इन्वेस्ट इन द मार्केट। उसके बाद हम एलोकेशन ऑफ फंड्स कर देंगे और एक्विजिशन कर लेंगे हम एसेट्स का। नेक्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग हियर, रिवीजन, यानी कि हम टाइम टू टाइम वहाँ पे रिवीजन करेंगे, ये नहीं कि अप्रेजल करेंगे सिक्योरिटी का। दैट इज़ अ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग अकॉर्डिंग टू करंट सिनेरियो। वी हैव टू टाइम गो एंड अप्रेज द सिक्योरिटी, वेदर द सिक्योरिटी इज सेफ इन द मार्केट, बिकॉज सो मेनी स्कैम एंड स्कैंडल्स आर देयर इन द मार्केट एंड यू हैव टू इंश्योर अबाउट योर इन्वेस्टमेंट। तो टाइम टू टाइम यू हैव टू इंश्योर अबाउट द थिंग्स। Next, and this is the most important thing, whenever we discuss about the investment, there are two main motives are there. One is return, second is minimize the risk. ठीक है, रिस्क क्या हुआ, जो हमने बात की थी अनसर्टेनिटी अबाउट द फ्यूचर। ठीक है, जितना हमने एक्सपेक्ट किया और जितना हमें एक्चुअल में मिला, दिस इज़ द डिफरेंस एंड दैट इज़ नोन एज द रिस्क। एंड पोटेंशियल रिटर्न की हम जब बात करेंगे, दिस इज़ रिलेटेड टू द हाउ मच यू अर्न फ्रॉम योर इन्वेस्टमेंट। तो जितनी भी इन्वेस्टमेंट हम करेंगे, कैरी सम लेवल ऑफ रिस्क। हर किसी के अंदर कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत तो रिस्क वहाँ पे रहेगा ही। नेक्स्ट, एंड दिस इज़ रिलेटेड टू स्पेकुलेशन। दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द शॉर्ट क्वेश्चन इन योर एग्जाम ऑल्सो। इन्वेस्टमेंट एंड स्पेकुलेशन। स्पेकुलेशन जब भी हम बात करेंगे, दैट इज़ अ पार्ट ऑफ द इन्वेस्टमेंट, लेकिन स्पेकुलेशन के अंदर क्या होगा, रिस्क भी ज़्यादा रहेगा। शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए हम मार्केट में इन्वेस्ट करेंगे एज कंपेरिजन टू द इन्वेस्टमेंट। And here 3 factors are there, on the basis of that we get difference between investment and speculation. एग्जाम्पल, इफ़ अ पर्सन बाय अ स्टॉक फॉर इट्स डिविडेंड। अगर एक कोई भी पर्सन है वो डिविडेंड के लिए स्टॉक बाय करता है, वो एक इन्वेस्टर हो गया कि उसे लगता है कि मुझे कैपिटल एप्रिसिएशन चाहिए, टाइम टू टाइम इनकम मुझे चाहिए, दैट इज़ अ इन्वेस्टर। इफ़ he buy with the anticipation of price rise in the future and hope of selling it again, he would be termed as a speculator. लेकिन उसके माइंड में सिर्फ यही हो कि प्राइस राइज हो जाएगा और मुझे मार्केट में उसे सेल करके निकल जाना है, दैट इज़ नोन एज द स्पेकुलेटर। एंड द पर्सन हु परफॉर्म दिस एक्टिविटी, दैट इज़ नोन एज द स्पेकुलेटर। Here the difference between the investment and speculation. Risk, अगर हम रिस्क की बात करेंगे, रिस्क इज़ लेस इन इन्वेस्टमेंट एज कंपेरिजन टू स्पेकुलेशन। कैपिटल गेन की बात करेंगे, हम जब भी कैपिटल गेन की बात करते हैं, वी टॉक अबाउट द इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट इज़ अचीवमेंट ऑफ एप्रिसिएशन। स्पेकुलेशन के अंदर अचीवमेंट ऑफ प्रॉफिट की बात करेंगे हम हमेशा। जब भी हम टाइम की बात करेंगे, हम इन्वेस्टमेंट के अंदर लॉन्ग टर्म बेनिफिट की बात करेंगे, और जब भी हम स्पेकुलेशन की बात करेंगे, वी टॉक अबाउट द शॉर्ट टर्म पीरियड ऑफ टाइम की हम वहाँ पे बात करेंगे। नेक्स्ट वन इज, दिस इज़ अ ब्रॉड डिफरेंस बिटवीन दीज टू। whenever we discuss about the investor as well as a speculator in the market, investor is a person who always take the moderate risk from the market, or speculator is a person who always take the high risk from the market. Return, इसके अंदर क्या हुआ, जब भी हम बात करते हैं तो moderate rate of return we are getting from the investor, for the investor point of view, and speculator always demand the high risk from the market, high return from the market, as well as on the basis of the high return.
decision. The investor take the decision on the basis of the fundamental factor. Here fundamental factor means the company analysis करेगा, market का analysis करेगा, technical analysis यहाँ पे वो करेगा, as well as the industry का analysis वो करेगा. और जो speculator होगा he take his decision on the basis of the insider information. Insider information क्या होती है? जो कंपनी के अंदर की information होती है, कंपनी के एम्प्लॉय से, कंपनी के स्टाफ से, या कंपनी कहीं से भी वो हायर अथॉरिटी से वहाँ पे इंफॉर्मेशन लेता है. ऑन द बेसिस ऑफ दैट ही ट्रेड इन द मार्केट टू गेट अ गेन फ्रॉम द मार्केट. दैट इज़ नोन एज द इनसाइडर इंफॉर्मेशन. फंड्स, जब भी हम फंड्स की बात करेंगे, इन्वेस्टर ऑलवेज यूज हिज ओन फंड्स एंड अवॉइड्स द बोरोड फंड. अपने फंड यूज़ करेगा, बोरो नहीं करेगा. और स्पेकुलेटर ऑलवेज यूज द बोरो फंड्स ऑफ मार्केट बिकॉज he make the strategy on the basis of like higher risk is there. If he take the higher risk, then higher return is there. जब भी हम सेफ्टी की बात करेंगे, इन द हाई डिग्री ऑफ सेफ्टी फ्रॉम द इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू, एंड वेन एवर वी टॉक अबाउट द इन्वेस्टर फोकस मोर ऑन रिटर्न दैन द सेफ्टी, क्योंकि उसका पूरा ध्यान ये होता है कि मुझे हायर रिटर्न मार्केट से मिले एज कंपेरिजन टू द सेफ्टी. नेक्स्ट सेम ऑलमोस्ट सेम कंसेप्ट इज देयर, लिटिल बिट डिफरेंस इज देयर, लाइक इन्वेस्टमेंट एंड गैम्बलिंग. गैम्बलिंग मीन्स क्या होता है? ब्लाइंड फॉल्ट. कहीं पे भी हमने इन्वेस्टमेंट कर दिया विदाउट मेकिंग आवर माइंड, विदाउट मेकिंग द फंडामेंटल एनालिसिस, विदाउट टेकिंग एनालिसिस ऑफ द थिंग्स. लाइक एग्जांपल हम लेते हैं, जैसे हमने हॉर्स रेस में किसी पे भी अपना लगा दिया, कोई भी गेम है, कोई भी लॉटरी हम लेके चल रहे हैं, दैट इज़ नोन एज द गैम्बलिंग. गैम्बलिंग एक शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है. इसका मेन मोटिव होता है अर्निंग एंड इनकम. इसका मेन मोटिव सिर्फ यही होता है. Now the main features of idle investment program. कि what are the features that is a part of the idle investment program? First one is safety. Safety, every investor want to get safe investment as well as they want to get a safe amount back from the market. This is a topmost objective for every investor. Liquidity, how quickly we convert the assets into the cash, that is also one of the feature of the perfect investment program. Next one is we want regular income from the market. Regular income means like we want wealth maximization, we want wealth appreciation in the market, as well as we want the stability of the income from the market. That is the most important thing. Nobody want to take a risk, nobody want to take a loss as well as a risk in the market. नेक्स्ट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, स्टेबिलिटी ऑफ द परचेजिंग पावर. हमने पहले भी डिस्कस किया कि इन्फ्लेशन अगर हाई है और रिटर्न आपका बराबर का है तो वहाँ आपको कोई प्रॉफिट नहीं होगा. देन एवरीवन वांट द परचेजिंग पावर स्टेबिलिटी इन द मार्केट, की हाउ मच यू परचेज फ्रॉम द मार्केट ऑन द बेसिस ऑफ योर रिटर्न यू आर गेटिंग फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट. नेक्स्ट इज़ कैपिटल एप्रिशिएशन, यानी कि आपकी कैपिटल में कितना इंक्रीज़ हुआ वहाँ पे. ठीक है, दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. नेक्स्ट इज टैक्स बेनिफिट. टुडे वेन एवर वी गो फॉर द इन्वेस्टमेंट, द इन्वेस्टर मेक देयर माइंड ऑन द बेसिस ऑफ द टैक्स सेविंग स्कीम्स. तो सो मेनी स्कीम्स आर देयर in the investment also where you invest and get a tax benefit from the market. This is also one of the most important feature of the investment. Thank you. I hope you like this video. Thanks a lot.